हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। खुल रहे हैं 8 बैंक्स और बिक रहे हैं ब्रांडेड प्लास्टिक वेयर। तो आइए चलते हैं बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल भारत में 8 बैंक्स खुल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बैंक कला की दुनिया के लिए काफी सहायक होंगे। भारतीय सोना बाजार में ही उछाल नहीं है, बल्कि 8 बाजार में भी काफी तेजी महसूस की जा रही है। एक बार फिर 8 बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पिछले 3 साल से करीब 15% की वृद्धि महसूस की जा रही है। पिछले 3 सालों में पेंटिंग्स के दामों में औसतन तिगुनी वृद्धि देखी जा रही है। ये वृद्धि पेंटिंग के कदरदानों के साथ साथ निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है। जब खरीदार आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, तो बैंक का आना लाजमी है। भारत में 8 बैंक बन रहे हैं। ये बैंक तरह तरह की दुर्लभ पेंटिंग्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ये है रविंद्रनाथ टैगोर की उर्ज बैंक ने बड़ी मुश्किल से संग्रहित किया है। और ये है सैयद हैदर रजा की 6 करोड़ की पेंटिंग। संग्रह करने के अलावा ये तरह तरह की पेंटिंग के सृजन को भी बढ़ावा देते हैं। We have a very documented process. The first is we see the last 5 years' work of that artist as to what he has done, and then we see what is the progression in his quality of work. If he's a new artist, we have to see what's the static, and then we be with the artist, for current 3 years, see for a period of 3 years how is his work shaping upon, and it's only after that we get convinced on the aesthetic progression. Then we start buying those artists' work. What we simply do is we buy works, give him financial support, so he does a quality work. पेंटिंग संग्रह और सृजन के अलावा ये 8 बैंक पेंटर को अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाने यानी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा वो खरीदार और निवेशकों की प्रोफाइल भी तैयार करते हैं, जिससे वो उनकी पसंद को जान सकें और उसी तरह की पेंटिंग उन्हें प्रस्तुत कर सकें। First step to a new collector is to find out his budget and showcase him that these, as it say, that these are the aesthetic probable investments you should look into. And to begin with, we always say that they should buy master's work. Now in those master's category, we also come out with a shortlisting as to which is the most undervalued artist available, and then we suggest him that okay, these are the body of works, look into that and what appeals to you. And after his selection process of whatever 4 or 5 works he suggested which he likes, then we come out and screen on the aesthetic valuation. As I did say that none of the works in our art bank will come into our art bank unless until it has been passed through this panel. So it will definitely have an aesthetic beauty. So that job is already done. So that's why all the collection which we have built or we are given to our clients has an economic value also added to that, and also have given them a lot of wealth creation over a period. आज ऐसे 8 बैंक्स के बन जाने से भारतीय आर्ट बाजार न सिर्फ ऑर्गेनाइज हो रहा है, बल्कि कई नवोदित पेंटर्स को भी सफलता के क्षितिज पर पहुंचा रहा है। ऐसे में ये कहना कि ये 8 बैंक कला की दुनिया के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, गलत नहीं होगा।
It's a very nascent market in India, right? So right now, it has to reach a level of a stability. What has happened is in 2006, if we see the market was, pegged at, 50 crores, and then in 2008 went to 1,000 crore, and then again took a seesaw battle, and currently is again at the lane. So currently I would say it's static, but we are pretty confident looking into all the research and data which we do, that in next 5 years, it should double from this. आज ग्लोबल आर्ट बाजार में भारतीय आर्ट बाजार की साझेदारी मात्र 0.6% है, जबकि अमेरिका की 36%, चीन की 23%, यूके की 22% और अन्य देशों की करीब 17% है। ऐसे में ये आर्ट बैंक भारतीय कला के बाजार को विश्व बाजार में कितना सशक्त कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। डिजिटल बीपी मॉनिटर भी भारत में खूब बिकने लगे हैं। भारतीय होम हेल्थ केयर के बाजार में एक नई चीज देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन हॉट केक की तरह बिक रही है। इस क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी बिक्री में लगातार 20 से 30% की वृद्धि देख रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से इसकी बिक्री और बढ़ाई जा सकती है। कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया में आज भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट का, वो एक बड़े ही लिमिटेड सेक्टर में कंट्रोल्ड है। उस वजह से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, या जिसको कहना चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो पेशेंट डिपेंडेंट होता है एक रिटेलर के पास, और रिटेलर उस प्रोडक्ट को तभी पुश करता है जबकि उसमें उसका ज्यादा बेनिफिट हो रादर के यूजर का या पेशेंट का। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे को हम फेस कर रहे हैं। बट हमने डिसाइड किया है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए हम रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे ज्यादा डिपेंड ना होके, हम उनकी विजडम पे डिपेंड ना होके, हम कोशिश करेंगे कि हम एंड यूजर्स के पास जाएं और उनको एजुकेट करके ये प्रोडक्ट बता पाएं। भागदौड़ की जिंदगी, मुट्ठी में पूरे आसमान को समेटने की चाहत, टूटते रिश्ते और समेटता व्यक्तित्व, ये सब लोगों के ब्लड प्रेशर को बढ़ा घटा रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में अगर यूजर फ्रेंडली ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन मिल जाए तो सब खरीदेंगे ही। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत ही सरल है। इससे ब्लड प्रेशर नापने के लिए न ही स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है और न ही गिरते पारे पर नजर टिकाने की। इसे लगाइए और ये खुद से ब्लड प्रेशर नापकर WHO स्टैंडर्ड्स के अनुसार आपको बता देगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है या सामान्य। हमारे पास दो किस्म के डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर हैं। एक वो जो कि आप आर्म पे लगा के यूज करते हैं और उसमें डिजिटली रीडिंग आती है और आप उसको देख सकते हैं। बट हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट यूज किया जो कि इंडिया में हम पहले हैं और इकलौते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। इसको टॉकिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर कहते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर होता है और वो जनरली सीनियर सिटीजन्स होते हैं, धीरे धीरे उनकी आई साइट जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है और वो रीडिंग्स को पढ़ नहीं सकते हैं खुद अपने आप। उस सिचुएशन में उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है एक्सेप्ट कि किसी की हेल्प लें। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये था कि हम ऐसा कोई ब्लड प्रेशर मॉनिटर लाएं जो कि उनको थ्रू वॉइस उनको बता दे कि उनका ब्लड प्रेशर क्या है और कंपेयर भी कर दे कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है। तो जो ये टॉकिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, एक तो ये बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। सेकंड, इसकी जो मेजरिंग जो
एरर है वो ओनली 5 मर्करी पॉइंट्स है। सो वो आपको एरर जो मिलेगा उसके अंदर वो हार्डली 5 मर्करी का है। ऐसे में ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ब्रांडेड प्लेयर्स को अपने प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर का निर्माण तेजी से हो रहा है। आज हम चल रहे हैं थाईलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड फुकेट की सैर पर। थाईलैंड एक ऐसा देश जो न सिर्फ एशिया बल्कि सारी दुनिया में अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ समय से ये देश एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सुर्खियों में आया है। वैसे तो घूमने के लिहाज से समूचा थाईलैंड एक बढ़िया जगह है, लेकिन इसका एक द्वीप फुकेट पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। दरअसल फुकेट का विकास ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। सैलानियों के मनोरंजन के लिए फुकेट में सब कुछ मौजूद है, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फुकेट में थाईलैंड की सभ्यता और संस्कृति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। रंगारंग कार्यक्रमों और पारंपरिक थाई लोक नृत्यों के द्वारा यहाँ आए पर्यटकों को थाईलैंड की खासियतों से परिचित करवाया जाता है। ये कार्यक्रम देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। फुकेट में पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है यहाँ बना थीम पार्क। लगभग 4000 एकड़ में बना ये थीम पार्क आपको थाईलैंड के प्राचीन समय की सैर पर ले जाता है, जहां जाकर ऐसा लगता है मानो थाईलैंड की प्राचीन सभ्यता के चरित्र वास्तविक दुनिया में आपके सामने आकर खड़े हो गए हों। ये सब एक तरह से वर्तमान से भूतकाल की रोमांचक यात्रा करने जैसा है। साउंड और लाइट इफेक्ट्स के द्वारा इन कार्यक्रमों को और भी ज्यादा वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जाता है। थाईलैंड दुनिया भर में अपने वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, जिसका सबूत है यहाँ की संस्कृति के हर स्वरूप में रची बसी हाथी की छवि। फुकेट के एलिफेंट पैलेस में हाथियों की अलग अलग तरह की लगभग 1000 सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियाँ इतनी बेजोड़ हैं कि एकदम जीवंत प्रतीत होती हैं। रात में तो एलिफेंट पैलेस की रौनक और भी बढ़ जाती है। वास्तविक हाथियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ दर्शकों का मन मोह लेती हैं। फुकेट के फेस्टिवल विलेज में आकर जहां पर्यटकों को थाईलैंड की पारंपरिक मेहमान नवाजी से रूबरू होने का तो मौका मिलता ही है, वहीं यहां सजी दुकानों से पर्यटक खरीद सकते हैं थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध लकड़ी, चमड़े और सिल्क से बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। खाने पीने के शौकीनों के लिए तो फुकेट दुनिया भर का खजाना समेटे हुए है। फुकेट की गोल्डन किनरे बुफे रेस्टोरेंट में आपको पूरा संसार बसा दिखाई देगा। यहाँ एक बार में 4000 लोग एक साथ बैठकर दुनिया भर के बेहतरीन पकवानों का लुत्फ उठा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फुकेट में टैक्सियों का बढ़िया नेटवर्क है, जो पर्यटकों को उनकी सुविधा अनुसार उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, फुकेट जाइए जहां के दिलचस्प नजारे आपकी राह देख रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि लोगों के रसोई घर में से मेटल के डब्बे और क्रॉकरी गायब हो गए हैं और इनकी जगह प्लास्टिक के डब्बे और क्रॉकरी ने ले ली है। ये अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
पहले आलीशान घर, फिर सुंदर ड्राइंग रूम और अब एक सुंदर किचन। ये है भारतीयों की चाहत। आज भारतीय लाखों रुपए की लागत से अपने घरों में मॉड्यूलर किचन लगा रहे हैं। किचन लुभावना है तो इसमें रखी चीजें भी लुभावनी होनी चाहिए और शायद यही कारण है कि आज भारतीयों के घरों में स्टील के बर्तन और क्रॉकरी की जगह ब्रांडेड प्लास्टिकवेयर ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ कैनिस्टर से लेकर टम्बलर तक सभी प्लास्टिक से बने हैं। लंच बॉक्स भी हैं और इनके फ्रिज में भी प्लास्टिकवेयर ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। नतीजा, प्लास्टिकवेयर की बिक्री बढ़ रही है। आई थिंक 20-25% से ये मार्केट ग्रो कर रहा है एंड किचन वेयर इसमें ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। सो अनऑर्गेनाइज्ड का कोई एक्चुअल आई डोंट नो द वैल्यू, बट ऑन एन एवरेज द स्टडीज हैव इंडिकेटेड दिस इज अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट, 20-25%. एक जमाना था जब लोग प्लास्टिकवेयर में न नमक रखते थे और न अचार रखते थे, न ही इनमें गर्म चीजें रखी जा सकती थीं। लेकिन आज बाजार में मिलने वाले प्लास्टिकवेयर ने पूर्व आग्रहों को उलटकर रख दिया है। ये माइक्रोवेव में भी रखे जा सकते हैं। इनके कंटेनर एयर टाइट होते हैं, लंच बॉक्स स्पिल प्रूफ होते हैं और ये टॉक्सिक फ्री भी होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोई प्लास्टिक तो है जरूर, पर वर्जिन प्लास्टिक है, इट्स सेफ फॉर यूसेज। इसमें कोई प्लास्टिक का स्मेल नहीं आएगा आपको एंड इसमें कोई ऐसे कलरेंट्स या चीजें नहीं मिले हुए जिससे आपका हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचे। प्लास्टिकवेयर अब तो शीशे के जैसे चमकदार भी बनने लगे हैं। इनके कप प्लेट गर्मी से प्रभावित नहीं होते हैं और इस तरह ये किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर भी पहुंच गए हैं। We have products that look like glass, but it's not glass. So वो अनब्रेकेबल भी है, पर जो लुक एंड फील वही देता है, तो लोग क्या है उसको पसंद करते हैं। So the trends have changed और consumers want the look, उसके साथ साथ उनको ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए। So we are able to actually combine all of that और हमारी जो डिजाइन्स होते हैं वो बहुत यूनिक डिजाइन्स होते हैं, तो लोग इसको पसंद करके सम पीपल कहीं एरियाज में जैसे जार्स वगैरह रखते थे, ग्लास बॉटल्स रखते थे पानी के लिए या कहीं चीजें अचार वगैरह रखने के लिए, उसको सारा कुछ चेंज कर रहे हैं। भारत के किचन में प्लास्टिकवेयर की बढ़ती पैठ दूसरे मटेरियल से बने किचनवेयर को कितनी प्रभावित करेगी और उनमें क्या क्या बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात होगी। It's time now for another short break. Stay with us. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बॉडीगार्ड ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए अब देखते हैं पिछले दिनों रिलीज हुई कुछ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। सलमान खान अभिनीत फिल्म बॉडीगार्ड ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है। सलमानी विजुअल कुजीन की ये डिश दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। नतीजतन बरसात के इस मौसम में बॉक्स ऑफिस पर पैसों की वर्षा हो रही है। इस फिल्म ने पैसा कमाने के बॉक्स ऑफिस के हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जैसे पहले ही दिन फिल्म ने करीब 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पहले सप्ताह में इसने करीब 106 करोड़ रुपए कमाए और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म तकरीबन 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी।
आई डू स्टिचिंग, सब सी देती हूँ। ओ तेरी। पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन ने भी बॉक्स ऑफिस पर जोरदार दस्तक दी है। साला प्यार भी हुआ तो अपने ब्रदर की दुल्हन से। इस फिल्म में इमरान खान और कैटरीना कैफ मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म में इमरान खान की अदाकारी को काफी सराहना मिली है। बहुत कम लड़कों में दम होता है लड़की भगाने का। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मशहूर पाकिस्तानी गायक अली जाफर ने भी इस फिल्म में सहायक अभिनेता का किरदार निभाया है। ये होती है असली लड़की, चुटकी में बिपाशा, चुटकी में मधुबाला, बहुत आला। फिल्म के पहले दिन ही सिनेमाघरों में 80% ऑक्यूपेंसी रेट रही, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। और पहले वीकेंड में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 25.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वर्षा ऋतु के मौसम में बॉक्स ऑफिस पर खूब नोटों की वर्षा हो रही है और इससे बॉलीवुड काफी खुश नजर आ रहा है। बिजनेस स्ट्रीट में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।